everybody. I welcome you to the success story series of EduTap channel. And today we have Mr. Akash Meena with us, who has recently cleared RBI Grade B 2023 examination. And in today's session, we are going to understand each and everything about his journey, about his experience of the examination, how he prepared, and especially how he managed himself during the difficult times. Now, why am I using this term difficult times? Because actually he's been preparing along with his job. So definitely it was a tough task to do, and but still it was like there was no excuses for him, right? Because when we are in job, we think, yeah, we have to compete with the full-time aspirants, we are working aspirants, and we give us all sorts of excuses. But it all depends what do you want in your life and how you strive for it. So, Mr. Akash Meena, welcome to EduTap, and heartiest congratulations on the big win. Thank you very much. Thank you. Right. So, sir, we will start off. We will understand about the sources, but I'm sure students would want to know about your education background, like what you did and when you decided that, okay, no, now I want to prepare for RBI examination, and you finally gave the attempt for it. Actually, I have done BCom honors from Hansraj College, Delhi University. In the beginning, I didn't aware about that such post of grade B exist in Reserve Bank of India. I was eventually preparing for UPSC and around 1 year I have prepared for UPSC. But because of COVID, I have to come back to my home from Delhi. And at that time, my parents told me that you should look for other examination as well. So at that time, SBI notification was out and IBPS notification was already gone. So I prepared for SBI and fortunately I cleared it. And when I when I entered in SBI, then there was a circle around me. They told me that such post also exist about RBI. So from them, I got to know about RBI, and from there onwards, I developed my interest towards RBI and knowing the importance it played in the economy. Right. But like you were very young, like when you joined SBI, and there were a lot of promotional opportunities that were there, and it was like SBI is also a secure job. So even though, like, okay, fine, you get to know about RBI, but what was one that thing which made you strive for it, because you already were settled, right? And like everything was going, I think, smoothly. So what made you think, yeah, nahi yaar, RBI seems like something where you should be part of? The thing is that when you're working in a public sector bank, there are certain things that may or may not annoy you depending upon your personality. So what happened with me is that PSB में जब काम कर रहे थे तो पता चला कि यार इससे भी ऊपर कुछ होता है, नहीं तो पहले लगता था कि PO ही सब कुछ है. तो फिर जब पता चला कि आरबीआई के जब ऑफिसर्स आते थे ब्रांच में, तो वी गेट टू नो फ्रॉम देम दैट व्हाट दे रोल दे प्ले इन द इकोनॉमी एंड द टाइप ऑफ जॉब दे एंजॉय एंड द पर्क्स एंड बेनिफिट्स दैट दे गेट. So that's the thing that attracted me, that there is something which is above what I am doing right now. So that motivated me throughout my journey for preparation for RBI. Right. But that's very beautiful thing. Many times we have those moments in life where we feel like, no, we are much more capable of our current situation. But, we ignore that for many reasons. Maybe the same that the current situation is not that bad. Maybe because of that reason, we don't push ourselves to be in the better place. Or maybe sometime it happens, we think that, we won't be able to give our 100%. For example, in your case, it was the time crunch. So these are the things which usually goes in people's mind. But then again, the only those people will become the example in society who will take that one step or that leap of faith in themselves, and like just like you did. And the result is now everybody seeing. And I really hope even the aspirants who know they have that in them, but they were just hesitant because of any reason, they take that inspiration from you to know that, to strive towards the goal, and they prepare for this examination, right? So sir, this was about, okay, so then, and then when you told your parents, so did they supported it, or were they like, oh, क्या करना है और हो तो गया है? No, they were always supporting me throughout my journey. They were very happy that I'm starting to think about something else that is much bigger than what I'm right now. तो उनकी तरफ Yeah. से तो हमेशा सपोर्ट रहा है. And even after clearing RBI, they told me that you have to go about this also. If there is something about it, then you have to do it also. Don't have to Yeah. stay here. So they are always supportive. Right. And I think it's with all the Indian parents. They would want Yes. their children to be like studying and studying, right?
even after the job. I think that's common thing that you will find in Indian parents, right? Okay, so then you start off with the preparation. So you for 1 or 2 year back you prepared for SBI, right? And then now you had to prepare for RBI. So like what is the difference? For example, quant reasoning in English, I assume, and aspirants might think that you would have a little bit easy hand on them, but still if you have to compare like the quants and reasoning specifically, how they are asked in SBI, and is it similar to what is asked in RBI, or there is difference in the difficulty level? There is the difference in the difficulty level. When you prepare for SBI, there are certain things that is totally different when we compare it with RBI, particularly in GK. When we see the GK in SBI, it is very factual. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि उस दिन किसकी डेथ हुई, या फिर कौन, इस बुक का ऑथर कौन था, किसने किसके साथ मर्जर हुआ, समथिंग लाइक दैट. बट इन आरबीआई, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड knowledge you should be having about any schemes are very much favorite of RBI. They are asking too much. And then RBI circulars, guidelines, these are also been asked in the RBI. So this differs totally with respect to the banking examination. And for quant, And if we talk about quant's difficulty, then yes, quant difficulty is very much high as compared to SBI or IBPS in RBI. And even we compare it with reasoning. Reasoning is also very difficult. These days, the cutoff of RBI is the example why there is a huge yeah. difference between the SBI and RBI. So I believe that the large difference is between the GK portion. That is factual one, and it is been understanding. Right. All right. So, to the aspirants who are watching any interview for the very first time in RBI, we have three phases: phase one, phase two, and interview. Phase one, we were just discussing. So, in phase one, we have quants, reasoning, English, and general awareness that is asked. And we'll talk about other phases when we'll move ahead. Okay. So, sir, if you talk about for quant, reasoning, and English, so did you rely only on the mock test, or you wanted to brush up the concepts, and then you refer to any source for that? For quants, I refer to Sarvesh K. Verma book, and I practiced all level 1, level 2, level 3 questions. The book has divided the question in 3 levels of depending upon the difficulty. And for reasoning, I followed a book of APC publication. I don't remember the name of the author. And for English, I prepared from General Objective. Arihat book is there for English, Right. so I followed from there. So, but And sir, for you referred to books. I'm sorry, we'll discuss DA in detail. But I wanted to ask, like for quant reasoning English, you refer to books, and like as you mentioned the book names also. But with the job, wasn't it difficult to take out time to do everything? So did you stick to some specific chapters, or did you like I don't know, like how did you prepare, or how many hours did you give if you prepared everything? देखिए, मेरे साथ ऐसा है कि RBI is totally different from other banking examinations. Rely on a particular with me, that was the case, as my quant is not that good. So what I did is that I prepared my strategy accordingly, that quant may I just want to clear sectional cutoff, and in reasoning I want to score just double the what the sectional cutoff was. So that was my benchmark for reasoning. I wanted to score in GK, that I have to score in GK, because from SBI times I get used to reading factual knowledge, and those that developed my understanding towards general knowledge. And in English मुझे था कि एवरेज नंबर तो आ जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा. तो मेरा टारगेट हमेशा से ये था कि अपने को टॉप नहीं करना है. मतलब वैसे भी प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं ऐड होते नहीं है, तो कट ऑफ क्लियर करनी है. तो मेरी स्ट्रेटजी उस हिसाब से थी कि कुछ भी हो जाए कट ऑफ क्लियर करनी है. तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर किया है. Right. तो आपको जो strength लगी कि these chapters are my strength, so you focused on that so that you can clear the sectional cutoffs, and much of the focus you gave in general awareness because you had limited time period. So for that you would have to do. Yes. Right. क्वांट में Okay. जैसे कि मैंने बताया कि आई वाज वीक इन क्वांट, तो मैंने केवल डीआई और रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा आती है आरबीआई में, मतलब वही आती है एक्चुअली. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समटाइम्स दे गिव, समटाइम्स दे डोंट, डिपेंडिंग अपॉन योर सेट. सो मैंने फोकस किया क्वांट में पूरा, मतलब 90% फोकस वाज ऑन डीआई, दैट एक भी डीआई बन गई तो 5 मार्क्स सीधे आ जाएंगे और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. एंड रीजनिंग में कभी भी पजल तो नहीं सॉल्व किया, क्योंकि पजल ऐसा होता है कि अगर आप पजल अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपके 15 मिनट गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देखोगे 15 मिनट जा चुके हैं. लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन सॉल्व द 15 मिसलेनियस क्वेश्चंस. तो आई टोटली रिलाइड ऑन मिसलेनियस क्वेश्चन, एंड उनके अंदर भी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, जो काफी लोग छोड़ देते हैं, आई बिलीव वो काफी इजी है टैकल करना. अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ा अच्छी है idea उसमें, तो मिल यू कैन जाए. गेट गुड मार्क्स. यस.
Right. Okay. So one more thing I want to ask, like you said, for example, in quants, you're weak at quants, so that is why you focused only on one, two topics. But when you are weak at something, so you have that fear that maybe because of this I won't be able to do. So let me just cover more and more chapters. So at that moment, how did you control yourself as an aspirant that no, I won't go for multiple chapters for being on the safer side. I'll just brush up my current knowledge regarding this particular these topics, only one or two topics that you had selected. ये काफी इजी था मेरे लिए, बिकॉज मैंने प्रीवियसली 2 अटेम्प्ट दिए थे आरबीआई के। तो इस बार ऐसा था कि अब मैं एसबीआई में भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोबेशन पीरियड भी खत्म होने के सामने, मतलब हो ही चुका। Hmm. तो मुझे पता था कि ज्यादा टाइम, जितना टाइम था, मेरा मेरा फोकस था कि 50-60% जीके को देना है, उसके बाद 10-20% इंग्लिश को देना, जो बच्चा फिर क्वांट रीजनिंग में बांट देना आता था। तो फिर क्वांट के लिए मैंने जब देखा कि भाई डीआई है, उसी में आप 5 नंबर ले सकते हो, Hmm. तो इवेंचुअली फिर मैंने उसी की तरफ टारगेट किया। तो आप जो बोल रहे हो कि मतलब पहले से कैसे डिसाइड किया होगा, तो जब आप पहले से आप देते हो एग्जाम, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो एंड तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। तो Hmm. मैंने 5 साल के जब प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो उसमें साफ साफ एविडेंट था कि डीआई हैज बीन कमिंग फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, और हर बार आ रही है पेपर में, और एक एक जनरली इजी आती है रिलेटिवली दी अदर वन। तो अगर आप सही से टारगेट करोगे पूरे पेपर को, और आप जब एग्जाम में भी बैठते हो, तो मेरा टारगेट ये था कि 2 मिनट में पूरा पेपर देखना है, 30 क्वेश्चन Hmm. पूरे देखने हैं, जो इजी होगा पहले उसको पकड़ना है। तो उसी तरह से मैंने फॉलो किया। तो वो इवेंचुअली आपको मॉक में भी वैसे ही स्ट्रेटेजी बनाते हुए उसको अप्लाई करनी है, जो स्ट्रेटेजी वर्क कर गई फिर उसी पे आपको काम करना है। और एग्जाम में चाहे पेपर कैसा भी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेटेजी आपके कंट्रोल में है, तो स्ट्रेटेजी पे ही रह के पूरा पेपर देना है। Hmm. राइट, ट्रू ट्रू, दैट्स ट्रू कि स्ट्रैटेजी अपने लिए पहले से डिजाइन कर लो व्हेन यू स्पेसिफिकली व्हेन यू नो कि फेज वन इट इज नॉट काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, सो यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ, सो प्रिपेयर एज सच that you have time to read and revise also and appear for examination also. All right, so now if we talk about in detail about general awareness, so in general awareness there's a lot of diversified topics that come. There comes reports, there comes schemes, there comes then current affairs, the general current affairs that comes, then RBI news and the circulars, RBI circulars. There's a lot of diversified things that come. So how did you manage that? This is what the basic question is. देखिए, आपको उसमें डिसाइड करना होगा कि आपको कैसे किस अकॉर्डिंगली पढ़ना है। बिकॉज अगर आप 5 साल के पेपर देखोगे आरबीआई के, तो उनका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स स्कीम्स रिपोर्ट्स, वो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, एंड स्कीम्स में भी वो उसको और हार्ड बनाते जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं स्कीम्स के अंदर भी, कि एकदम डीपर फीचर्स पूछ रहे हैं वो स्कीम्स के अंदर भी। तो अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टॉपिक है जो कि पढ़ने ही नहीं है। अगर आप, जैसे कई लोग मैंने देखा है, मंथली मैगजीन उठाते हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट पढ़ते हैं, ओबिचुरीज पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ते हैं, स्टेट न्यूज भी पढ़ते हैं, स्टेट के बजट्स पढ़ते हैं। तो वो अगर आप पेपर एक बार आप देख लोगे, 5 साल के एनालिसिस आप सही से, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अगर आप आ भी जाता है, तो कोई 100 में से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप वही आप नेशनल न्यूज पे फोकस करोगे, आरबीआई के रिलेटेड न्यूज पे फोकस करोगे, फाइनेंस के रिलेटेड न्यूज पे, जो एकदम स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस प्ले करती है, आरबीआई को मेरे हिसाब से उन चीजों से ज्यादा कंसर्न है। दैट इज एविडेंट फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स पेपर। सो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंगली जीके के लिए डिवाइड करी, कि आई विल बी रीडिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड देन आई विल बी रीडिंग आरबीआई रिपोर्ट्स, एंड दैट टू वीकली, मंथली एंड द ईयरली रिपोर्ट्स, Hmm. पर्टिकुलरली द एनुअल रिपोर्ट। अब आप जब भी रिपोर्ट पढ़ोगे, स्कीम्स पढ़ोगे, आपको प्री के हिसाब से नहीं पढ़नी है, डे वन से आपको उसको मेंस के हिसाब से पढ़नी है। जब आप Hmm. डे वन से मेंस के हिसाब से पढ़ोगे, तो प्री अपने आप हो जाएगा आपका, क्योंकि Hmm. प्री में केवल फैक्ट्स आएंगे, मेंस में उसको आप उसी को आपको अंडरस्टैंडिंग से आंसर करना है। तो जब डे वन से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे, तो आपको बहुत इजी होगा मेंस में एक आंसर फ्रेम करना। तो और Hmm. फिर इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, तो इनसे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे हैं, 2 साल से तो इतने डायरेक्टली क्वेश्चन बजट से भी नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके पॉइंट्स को आप मेंस में काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। राइट राइट। सो सर इसके लिए आपने कोई, जैसे आपने स्कीम्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, फिर आपने जैसे खुद ही न्यूज़ वगैरह देखते थे या आपने कुछ सोर्सेस भी फॉलो करे सो दैट आपको ईज हो जाए? स्कीम्स के लिए मैंने एडुटैप की जो स्कीम टैप है उसको फॉलो किया था, एंड रिपोर्ट्स के लिए मैंने पर्टिकुलरली सर्च किया था। मैंने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया, मतलब जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो मैं सर्च करते थे, जहाँ से भी मेरे को नोट्स मिल जाते थे वहां से बना के हैंड रिटन नोट्स बनाए सबके स्कीम्स के।
एंड इवन नोट्स जो रिपोर्ट्स है उनके भी हैंड रिटन नोट्स हैं। फिर आरबीआई सर्कुलर जो है आरबीआई की वेबसाइट से ही मैं फॉलो कर लेता था। एंड केवल मंथली मैगजीन के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड की मंथली मैगजीन रेफर की थी, वो भी जो उनका एक्सप्लेन्ड मंथली मैगजीन जो 350 पेजेस के आसपास आती है, वही मैंने रेफर की थी। बिकॉज लोग क्या करते हैं, पॉकेट पीडीएफ पढ़ते हैं, और मैंने पिछले अटेम्प्ट में क्या किया था कि जो जितने भी समरी वाली जो पीडीएफ आती है, मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। अगर एसबीआई जैसे एग्जाम में फिर भी वर्थ इट है जहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज आ रही है, लेकिन आरबीआई में आपके लिए वर्थ इट नहीं है। हो सकता है कि वो समराइज करके कुछ ऐसे पॉइंट छूट जाए जो हम्म, आपके प्री में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं। तो मैंने वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो उनकी लार्ज वाली थी वो वाली मैंने डिटेल। पढ़ी, जिसमें जी डिटेल वाली जो थी वो पढ़ के सॉल्व की थी। राइट, राइट। और आपने मॉक टेस्ट भी दिए काफी, या टाइम ही जी मैंने नहीं मॉक मिला? टेस्ट दिए थे। नहीं नहीं, मॉक टेस्ट दिए थे। मेरा ऐसा था कि एक मॉक टेस्ट देना है, 2 दिन उसको अच्छे से एनालाइज करके फिर उस पे उनकी जो जो वीकनेस आई उस पर वर्क करके फिर 2 दिन बाद दूसरा मॉक टेस्ट देना है। मेरा ऐसा नहीं था कि 1.5 दिन के 5 दे दिए, 2 दे दिए, एक देना है। राइट, 2 दिन देखना है क्या करना है, उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर दूसरा मॉक टेस्ट देना है। राइट। बट एज एन एस्पिरेंट एंड स्पेशली वर्किंग एस्पिरेंट, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे आप बता रहे हो कि एक बार मॉक टेस्ट दिया, फिर उसको एक दो दिन एनालाइज करा, उसको समझा, फिर कि अंदर से एक ऐसी आवाज नहीं आती कि यार मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, लेट मी जस्ट कवर मोर एंड मोर इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग स्टक एट अ पर्टिकुलर थिंग? जी ये होता है, पर्टिकुलरली मेरे साथ ऐसा मेंस के टाइम पे हुआ था। लेकिन प्री से पहले क्या था, मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं हम्म। ये सब के बारे में सोच सकूं। मैंने फरवरी के आसपास स्ट्रेटेजी डिसाइड करी, इस तरह से काम करना है। एंड 2-3 फ्रेंड से रेफर करा कि क्योंकि जो अभी इस समय आरबीआई में है, उनसे रेफर करा कि क्या उनके लिए वर्क किया, फिर उसको मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाई, हम्म। और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली चलता रहा। बिकॉज मैं दिन भर काम कर रहा था बैंक में, तो मेरे को रात को आके 5-6 आवर्स ही मिलते थे, तो उसमें मेरे पास इतना सोचने का समय नहीं था। और उसमें मेरे को 6-7 मंथ्स का जीके कवर करना है, उसके बाद कॉन्ट करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है। मेरे को नहीं लगता अगर कोई वर्किंग पर्सन काम कर रहा है उसको इतना समय होगा कि वो सोचे। तो वो फिर एक बार स्ट्रेटेजी बन गई तो फिर उस पर वो चलते रहता था। राइट, दैट्स वेरी ट्रू। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट फॉर एस्पिरेंट्स ये निकल के आया है कि अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बना दी, फिर उसके बारे में आप उसको बीच बीच में, यू डोंट हैव टू एनालाइज द स्ट्रैटेजी दैट इज इट वर्किंग और इज इट नॉट वर्किंग। राइट, द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट टू इम्प्लीमेंट इट, यू बिकॉज इफ हैव यू टू हैव कीप ऑन कॉन्फिडेंस अपॉन इट। चेंजिंग, yeah, true. Because initially, like for example, for the first time you're making a strategy, at that moment you can take the suggestions of the experienced one and make a plan for yourself. But once you have made the plan, but then you have to just shut your mind and just follow that. You can't just यस keep यस। on analyzing the thing. You have to analyze your mistakes in the examination and mock test, and Actually, not in these were the the mistakes plan. I was doing in the last previous 2 attempts. I always used to revise my strategy. अरे वो उसका हो गया था, उसने ऐसे किया था, अब उसके अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। उसने वैसा किया था, उसके अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। तो वो वर्क नहीं किया मेरे लिए। इस बार मैंने Hmm. डिसाइड किया मेरे को ऐसे ही करना है, बाकी दुनिया कैसे करी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो फिर वैसे करते रहा तो हो गया इवेंचुअली। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जो भी अगर तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करे और उसी पे स्टिक रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। Right. That's very beautiful thing that has come out of this particular section. And now if I talk about, so last two attempt you could not clear pre, and this year तो जब तक Yes. रिजल्ट नहीं आया था, ऑल्दो इट्स गुड कि आरबीआई जल्दी प्रिपेयर रिजल्ट निकाल देता है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आया था, सो दिस टाइम वर यू कॉन्फिडेंट, और यू स्टिल बिकॉज ऑफ द पास्ट फेलियर्स यू वर अ लिटिल बिट ऑफ skeptical and scared that यार इस बार होगा भी या नहीं होगा? I wasn't sure at after giving prelims that I will be even clearing prelims this time also, because quant में कुछ दो क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन वो राइट थे। लेकिन तो मेरे को लेकिन लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम्म। इंग्लिश में भी आप कभी कभी श्योर नहीं होते हो कि जो आपने टिक हम्म। किया है क्या वो सही है, क्या पता वो सामने वाले के लिए गलत हो, आपके लिए वो सही लग रहा हो। हम्म। रीजनिंग में भी आप लॉजिकल रीजनिंग जब कर रहे होते हो तो आपको नहीं पता रहता जो आप कंक्लूजन मान रहे हो कंक्लूजन है भी, जो इन्फ्रेंस मांग रहे हो वो इन्फ्रेंस है भी। True. तो इस तरह के क्वेश्चंस पे काफी डाउट था कि प्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से मैंने अपना 7 दिन भी नुकसान किया, क्योंकि जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आया मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे को लग हम्म। रहा था नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं अब काम ही करते हैं, तो फिर अगले साल ट्राई ट्राई करेंगे। लेकिन जब हो गया फिर मेंस के लिए पढ़ाई करी, तो मेंस देने के बाद भी लग रहा था कि शायद वो वाला क्वेश्चन गलत किया होगा, उसका ऐसा आंसर दिया होगा, तो क्या पता उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, मेरे मार्क्स कट हम्म। जाएंगे। और अब तो कट ऑफ भी मेंस में कट ऑफ इवेंचुअली हाई जाती है थोड़ी बहुत, तो राइट। क्या पता नहीं एंड हो पाए। एंड स्पेशली ऐसा होता है कि जब आप सिंसियरली प्रिपेयर करते हो तो आप फिर ज्यादा डरते हो रिजल्ट से, कि क्या जी जी पता जी। ये होगा नहीं होगा, ये सही था या नहीं था। ऑल राइट, सो ऑन दैट नोट लेट्स टॉक अबाउट फेज 2। सो देन योर पेपर, आपका रिजल्ट आया, देन यू हैड टू प्रिपेयर फॉर फेज 2। सो अब क्या स्ट्रैटेजी थी? फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एफ एम, सो प्लीज शेयर द सोर्सेज दैट यू रेफर टू फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। और उसमें जैसे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों आता है, तो क्या आपके ऐसे
स्ट्रैटेजी थी कि नहीं, मैं दोनों ही ESI एंड FM में, कि मैं ऑब्जेक्टिव में ज्यादा फोकस करूंगा और डिस्क्रिप्टिव सो एंड सो दूंगा, या आपने इक्वली मेहनत करी बोथ फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव? मेरे मेरे विश्वास से ये है कि आप जब डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिस करी है, तो ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में उसी चीज को आपको बस फैक्चुअल तरह से वो पूछ लेंगे, चार ऑप्शन देके, तो आंसर तो आपके सामने ही रहता है ऑब्जेक्टिव में। ट्रू। आपको जस्ट राइट ट्रिक करना है। तो मैंने इस तरह से प्रिपेयर नहीं किया था कि ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। बस पर्टिकुलरली ईएसआई में मैंने, जैसे ईएसआई में रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स आती हैं, इस बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने केवल रिपोर्ट्स पार्ट कवर किया था। वो जनरली नहीं आता है इसमें आपके जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है, तो मैंने उसके लिए केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई की थी कुछ सर्टन एरियाज में। एंड बाकी चीजों के लिए, जैसे मैनेजमेंट के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड के मैनेजमेंट का एक कोर्स लिया था, तो मैनेजमेंट को मैंने वहां से कवर किया था। एंड फाइनेंस में मैं डेली फॉलो करता था, कुछ यूट्यूब चैनल थे, उनको फॉलो कर लिया कि कहीं से भी रैंडमली उठाया। मैं बैंक में यही करता था कि कोई भी रैंडमली अगर कोई आ रहा है तो देख लेते हैं क्या चल रहा है, और अगर मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसके नोट्स बना लेता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बाइबल है एक तरह से। आपको उसको उठाना है, उसमें एक एक टॉपिक को सर्च करना है, आपको होनी चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप केवल करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं कर सकते हो। आपको जैसे उसमें आरबीआई के फंक्शंस लिखे, तो आपको ईच एंड एवरी फंक्शन आरबीआई के पता होने चाहिए, क्योंकि जो भी अगर क्वेश्चंस आता है, डायनेमिक क्वेश्चंस तो आ रहे हैं अभी करंट अफेयर से जुड़ते हुए, लेकिन वो हमेशा स्टैटिक पोर्शन से ही रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आपको स्टैटिक की नॉलेज है तो आप डायनेमिक क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी करी। एंड ईएसआई के लिए, जैसे कि ईएसआई की जो सिलेबस है वो काफी इजी दिखती है। पॉवर्टी लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है, जेंडर इक्वलिटी, वो हम तो काफी बचपन से पढ़ते हुए आ वास्ट रहे हैं। टॉपिक है। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे तो काफी कुछ निकल के आ जाएगा आपको। राइट। पॉवर्टी को लेके गवर्नमेंट की 10 से 15 स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट को लेके 10 से 15 स्कीम है। राइट। जैसे और क्वेश्चंस भी जो आरबीआई के डिस्क्रिप्टिव में आते हैं काफी ट्रिकी आते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, आपको सुनने में बहुत इजी लगेगा कि डिफाइन 3 स्कीम्स दैट प्रोवाइड्स फॉर दैट एराडिकेट पॉवर्टी एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ऐसी कोई स्कीम नहीं लिखनी है जो सिर्फ पॉवर्टी एलिवेट कर रही है, आपको वो स्कीम, तीन ऐसी स्कीम लिखनी है जो पॉवर्टी भी इरेडिकेट कर रही है और साथ साथ राइट। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है। और तो उसके अंदर की आपको, गाइडलाइंस भी थोड़ा बहुत आपको पता हाँ, होनी उसको चाहिए, अच्छे सो दैट यू एक्सप्लेन कैन करना, राइट आपके इट पास डाउन। डेटा होना चाहिए उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो कि राइट। ये स्कीम ऐसे कर रही है। तो डेटा आप कहाँ से लाओगे? ये इकोनॉमिक सर्वे से लेके आओगे। इकोनॉमिक सर्वे में मतलब आपको सारी स्कीम्स का डेटा मिल जाएगा। तो हम्म। इसके अकॉर्डिंगली आपको सारे सोर्सेज को वहां पे ध्यान रखना, जो आपने प्री के समय पढ़ा वही आपको गाइड करेंगे मेंस के समय में। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा डेटा उठाना है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आप स्कीम्स वाला उठा लो, वहां पे आपको इस बार क्वेश्चन आया था जी नरेगा के ऊपर, तो मैंने नरेगा के पॉइंट्स वहां से इकोनॉमिक सर्वे से उठाए थे। तो हम्म। इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। राइट। एंड मेनी टाइम्स मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि काफी सिंपल जेनेरिक चीज होती है। जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि आपको क्लाइमेट चेंज टॉपिक दिया, आपको इजी लगेगा कि क्लाइमेट चेंज सबको पता है, पर मैं इसमें बोलूंगी सिक्स जी हंड्रेड वर्ड्स आप लिखो, तो तब आप स्टक कर जाओगे कि 600 वर्ड्स में कैसे लिखूं। सो जी जी, ये मेरे साथ हुआ था। ऐसे में क्वेश्चन आया था क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ लिखो, तो लगा मेरे को कि ये क्लाइमेट चेंज है तो लिख लेंगे। लेकिन जब 5 मिनट बैठ के सोचना भी पड़ता है कि क्या लिखूंगा, तो 5 से ज्यादा पॉइंट नहीं निकलते दिमाग से। तो फिर इवेंचुअली मेरे को दूसरा ऐसे चूज करना पड़ा। तो ये राइट। होता है। सो जैसे आपने बताया कि ऑफ कोर्स की जो प्री की तैयारी है वही काम आती है, लेकिन जैसे प्री में जैसे आपने सोर्सेज भी देखे होंगे, तो जितने भी नोट्स जैसे आपने फॉलो करे, जो भी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के अफेयर्स क्लाउड के, तो हम क्या करते हैं, काफी प्रिसाइज कंसाइज वे में क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से, कि सब कुछ एकदम कट शॉर्ट हो। लेकिन जब एग्जामिनेशन में व्हेन यू सिट डाउन एंड यू टाइप द आंसर्स, तो अपार्ट फ्रॉम डेटा कुछ लिंकिंग वर्ड्स लाइंस भी होनी चाहिए। हाँ So हाँ हाँ। yeah, so for that, like, did you made any like pointers कि यार ये टॉपिक मुझे एडिटोरियल से अच्छे से पढ़ने हैं, या आपने इस चीज के लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई थी? आई डिडंट रेफर एनी न्यूज़पेपर फॉर नाइदर फॉर प्री नाइदर फॉर मेंस। जस्ट मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के जरूर पढ़ा था, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो एडिटोरियल तो कोई कवर हुआ नहीं। हाँ, इधर मेरे को अपनी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन मैंने करी थी 1 1.5 साल की, वो मेरे को हम्म। बहुत हेल्प करी। उनकी वहां से मेरे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी थी, कि वहां पे जैसे वो सिखाते थे कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन भी 3 तरह के होते हैं, या तो आप कोट लिख के शुरू कर रहे हो, या कोई फैक्ट लिख के शुरू कर रहे हो, या फिर आप डेफिनेशन लिख के शुरू कर रहे हो। तो हम्म। मैं हमेशा डेफिनेशन की तरफ जाता था। तो डेफिनेशन आपने लिखा, फिर बॉडी में भी 2 तरह की बॉडी होती है। अगर आप पैसेज फॉर्म में लिख रहे हो कि पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहे हो, देन फिर कंक्लूजन आता है। तो उस तरह से आपको पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनकी अगर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से दे हैव टू प्रैक्टिस इट वेल बिफोर मेंस। आई थिंक दे शुड प्रिपेयर हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम वे बिफोर प्रीलिम्स एज वेल। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना चाहिए मेरे से। राइट। राइट। उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करा, एंड समवॉट लाइक जो भी आपने जैसे रिपोर्ट्स वगैरह खुद से की थी, इसलिए आपको राइटिंग, आंसर राइटिंग में आपको उस चीज के लिए हेल्प मिल गई।
And जी। and another thing I want to ask, did you meet that word limits? Do you think कि वो word limit touch करना is something that everybody should follow? और if quality answers are there, so अगर थोड़ा बहुत नीचे भी है word limit, so it would be fine. मैंने किसी में भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिमिट टच भी नहीं करी। जो मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन 600 वर्ड्स पे लिखना होता, तो मेरे हार्डली 400 450 गए होंगे वर्ड्स। वो भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे बस कुछ था लिखने के लिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है जो टू द पॉइंट है, जैसे मैनेजमेंट में वहां पे एक क्वेश्चन आता है, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल लिखना है आपको। अब आप 14 लिखने के बाद और क्या लिखोगे उसमें? कुछ भी तो नहीं, हेनरी फॉल के बारे में तो नहीं लिख सकते हो। तो हम्म। फिर वैसे ही था, तो उस वो क्वेश्चन आया था थर्ड 10 मार्क्स में, तो 400 वर्ड्स लिखा, लेकिन मेरा 250 में खत्म हो गया 14 प्रिंसिपल हम्म। डिफाइन करते करते। मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको बैलेंस रखना है क्वांटिटी और क्वालिटी में, और फोकस क्वालिटी में ज्यादा रहना चाहिए देन क्वांटिटी। देन तभी मेरे हिसाब से आप ज्यादा अच्छे मार्क्स ला पाओगे। True. Right. Okay. So this was about your phase two, and one more thing, if you want to ask for descriptive English, what do you think? Like descriptive English में जब questions बनते हैं ऐसे के, so किस basis में, like is it similar to FM and ESI syllabus, या जो भी national level में generic चीजें चल रही हैं वो? ये जनरली नेशनल लेवल जो जनरल जो इंपॉर्टेंट चीज चल रही है उसी के रिगार्डिंग रहती है। जैसे इस बार क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए आया था, और एक वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी एक ऐसे आया था जो इनडायरेक्टली वर्क लाइफ बैलेंस को इंडिकेट कर रहा था। तो मैंने उसी पे ऐसे लिखा था एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से आप जो ईएसआई के लिए, एफएम के लिए पढ़ रहे हो, फाइनेंस और पर्टिकुलरली इकोनॉमी ईएसआई के लिए जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो वो हम्म। मोस्टली वही बन जीके वही आपका ऐसे बन के आ जाता है। तो Right. आपको ऐसे के लिए मेरे हिसाब से कोई ऐसे एज ए कोई स्पेशल नहीं करनी है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। मैंने तो नहीं करी। मैंने Right. जो ईएसआई के लिए पढ़ा, जो एफएम के लिए पढ़ा, उसी को elaborate करके ईएसए में ऐसे में लिख दिया। Right. This follow-up question I want to ask with what you said about the essay that you wrote for the aspirants. जैसे usually essays में बोलते हैं कि इससे personal experience और ये सब नहीं लिखना चाहिए, but you wrote on work-life balance. So did you wrote about like your personal experiences at that and all that, या आपने एक generic एक answer जो एक bookish एक theoretical जो answer होता है आपने वो लिखा था? नहीं, थियोरेटिकल बुकिस तो नहीं लिखा। जैसे उसमें इनडायरेक्टली बोला गया था कि आजकल जो पीपल, जो लोग हैं, वो हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा प्रेफर करते हैं देन काम करने को लेके। तो ये हम्म। इस तरह का कुछ ऐसा था। तो मैंने लिया तो था अपना एग्जांपल, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिया, इनडायरेक्टली घुमा के लिखा था कि हम्म। इस तरह से कुछ चीजें होती है जो लोगों को इफेक्ट कर, मेंटलिटी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हम्म। करती है। तो ऐसे घुमा के लिखा था, डायरेक्टली तो नहीं मेंशन किया था। और बुकिस भी नहीं था, जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सराउंडिंग में देख के पता चलता है। और जब आप पीएचडी में काम करो तो आपको आप बेटर लिख सकते हो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर ऐसे तो। तो हम तो Right. एक So पीएचडी से it अच्छा was तो कोई मतलब बैलेंस पे लिख नहीं सकता। yeah, so it was like writing the normal things जो डे टू डे में होती ही हैं, but not in a direct way. So जैसे उन्होंने जी जी। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, तो आपने भी एक्सपीरियंस घुमा फिरा के इसमें फ्रेम किया. So aspirant, I think aspirant should avoid this writing their own personal experience, like writing I in the essays, right? यस Instead यस of, वेरी मच। yeah, they can use the term people, they can use the term happens in the society, but they should not use I work here, so I know that this and all that information दे should कैन not यूज be. नाउ डेज दीज थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। Hmm. Right. So these can be used. Okay. So that was about phase two. And once phase two was done, so were you sure about it? Or then again you were in speculation नो that नॉट will. एट ऑल, व्हेन यू गिव एएसआई नोबडी इज श्योर दैट एएसआई की वजह से, सबको ये लगता है कि एएसआई की वजह से ही पेपर नहीं हो पाएगा। मेरा भी ऐसा ही था, क्योंकि 2 3 रिपोर्ट्स आई थी, तो मैं दो 2 3 आई थी, तो उसमें 2 नहीं कर पाया था मैं। मतलब ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, तो मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर जैसे मैंने प्री की बात किया, तो मेन सी बात भी फिर बंद हो गया, पूरा प्रिपरेशन बंद हो गई। Hmm. लेकिन अच्छी बात थी कि आरबीआई ने जल्दी रिजल्ट निकाला, तो फिर पता चल गया था कि हो गया है। राइट. सो वो 2 दिन टेंशन में थे, या सोचा कि अरे अब नेक्स्ट ईयर की ये करूंगा वो करूंगा, ये स्ट्रैटेजी रहेगी? नहीं नहीं, बहुत टेंशन में था मैं। मैंने सबको बताया कि शायद नहीं हो पाएगा यार, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर हम्म. अब मैंने इतनी भी छुट्टी भी ली थी, तो फिर अब उसके उसको भी लेके था कि अब साल भर छुट्टी भी नहीं बची है मेरे पास कुछ करने के लिए। तो फिर राइट. अब क्या करूंगा, तो 2 3 दिन टेंशन लगता है। फिर अब मैं उसके उसको दूर करने के लिए मैं अपने आप को काम में बहुत ज्यादा बिजी रखने लगा। मतलब रात को लेट लेट तक काम कर रहा हूँ कि मैं सोचूं ही नहीं इस बारे में। तो Right. इस तरह से चल रहा था। So this happens, and as we say discussed before also, especially when you're sincerely preparing, तो result से ज्यादा फिर डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फेवर में होगा या नहीं होगा. So during that time, and even during the preparation journey, it happens many time, it happens, right, when you feel low, or you question yourself that why are you doing this? You have everything, but why are you doing this? So at that moment, how you used to handle that? Did you used to talk
with somebody, maybe parents, friends, or you used to keep within yourself, and because you would not want to bother anybody else? So please enlighten. मोस्टली आई यूज टू कीप विद इन माई सेल्फ, बट मेरे साथ एक फ्रेंड है जो इस बार उनका नहीं हो पाया, लेकिन आई यूज टू शेयर विथ हिम। सो हम दोनों आपस में बात कर लेते थे कि यार ये नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर हम्म। करते थे, तो इस तरह से हमारा चलता था। तो एक ही फ्रेंड था मेरा जो उनके साथ में वो जो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, दोनों का इंटरेस्ट मैच करता था, तो हम दोनों आपस में ही बात कर लेते कि यार तेरा कैसे चल रहा है, मेरा ये हो गया। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा था। Right. So that to have that study partner, we can say, you had a study partner, and with him you shared all your feelings, and he also shared. So दोनों को एक ऐसे relatable, वो जो जैसे relatable memes होते हैं, I think वैसे ही दोनों को एक situation relatable लग रही होगी of everything, जी जी जी। and that has helped. All right. And did parents say anything when you were like a bit skeptical about your phase two result, or they were like कोई नहीं, next No, no, time try? I didn't share it with अच्छा. them because they will be concerning that ठीक है कोई Hmm. नहीं. So that's why I Right. didn't Right. told them. Right. Okay. And then the result came. So what was the next step then after that? The moment the result came, I was in the branch. तो मेन से जब रिजल्ट आया मैं ब्रांच में था, तो फिर उसके बाद फिर बोला कि घर में फोन किया कि हो गया है। देन एट द Hmm. सेम टाइम ये भी क्वेश्चन था कि अब इंटरव्यू कितने दिन बाद होगा, तो आई वाज सर्चिंग कि कितने दिन बाद होता है मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू, सो दैट आई कैन Hmm. नो कि अब कितने दिन तक मिलेंगे मेरे को प्रिपरेशन करने के। तो वैसा था, फिर मैंने कॉल किया अपने दूसरे फ्रेंड को कि, तो लेकिन इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया, तो फिर उनसे बात और नहीं हो पाई। फिर देन आई कॉल्ड माय फ्रेंड इन आरबीआई दैट ऐसा हो गया। देन ही वाज वेरी हेल्पफुल, उन्होंने बताया कि अब आपको ऐसे ऐसे करना Hmm. है। एंड हमारे बैच से, मैं उड़ीसा सर्वर में काम करता, तो हमारे बैच से दो लोगों का हुआ था, मेरा Okay. और एक और एक फ्रेंड है उनका हुआ था। तो फिर मैंने उनके साथ बात करी कि आपने क्या किया है, कैसे क्या करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे प्रिपेयर हुआ। Right. तो सर आपने फिर क्या क्या सोर्सेज यूटिलाइज की टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, फॉर द इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए मैंने जो पहले तो बायोडाटा फिलअप किया। तो हम्म. मेरे जो फ्रेंड है आरपीएम, उन्होंने बोला था कि आप जो बायोडाटा लिख रहे हो बहुत ध्यान से लिखना, उसमें क्या लिख रहे हो, एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, और कुछ भी लिख रहे हो तो उसके बैकग्राउंड से लेके सब कुछ पता होना चाहिए आपको उसके बारे में। तो हम्म. मैंने बड़े ध्यान से पहले बायोडाटा लिखा, 4-5 दिन लगे मेरे को बायोडाटा को ही फिल करने में, सोच सोच के। तो फिर जब बायोडाटा लिख दिया, तो फिर उसको फिर सेंड करना होता है, तो सेंड कर दिया। फिर उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया। जैसे मैं एसबीआई में एसएमई में और एग्री पोर्टफोलियो संभालता हूँ, तो मैंने एसएमई के बारे में सब कुछ पढ़ा, एग्री के बारे में सब कुछ पढ़ा। फिर मैंने वहां पे लिखा था कि एनपीए मैनेजमेंट इज वन ऑफ माय वर्क, तो एनपीए के बारे में पूरा सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ा। फिर देन मेरा बीकॉम ऑनर्स बैकग्राउंड है, तो मैंने कॉमर्स में पढ़ा, और मेरे को पता था कि दे विल आस्क समथिंग रिलेटेड टू बैलेंस शीट, बिकॉज एक कॉमर्स ग्रेजुएट को पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। तो मैंने पढ़ा था आरबीआई की बैलेंस शीट के बारे में, एंड बैंक की बैलेंस शीट कैसे डिफर होती है आरबीआई की बैलेंस शीट से, आरबीआई की बैलेंस शीट कैसे कंपनी की बैलेंस शीट डिफर होती है। और उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा मेरे से इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीआई बैलेंस शीट एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। तो वो काफी हेल्पफुल रहा। तो मेरे हिसाब से अब जब बायोडाटा इज योर बाइबल व्हेन यू कम टू इंटरव्यू, बायोडाटा के अराउंड ही क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जैसे वन ऑफ द एक्टिविटी मैंने करिकुलर एक्टिविटी में लिखी थी कि आई टेक टू पार्ट इन एंटी फायर कैंपेन। एंटी फायर कैंपेन हुआ था हमारे कॉलेज में, तो मैंने उसमें पार्ट लिया। तो उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट इज ग्रीन क्रैकर। तो क्वेश्चन जो जितने भी थे वो सब बायोडाटा से रिलेटेड थे। तो ये बहुत हेल्प मिली। मैं जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बताया था कि आप बायोडाटा ही पढ़ो, कोई फायदा नहीं, आप दाएं बाएं जाओगे। बस एक नई सोर्स मैंने ऐड करी थी कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो था, मैंने मिंट का ऐप फॉलो करा, शॉर्ट्स न्यूज वहां से देख लेता था, फिर घर आके इकोनॉमिक सर्वे या फिर बिजनेस जो स्टैंडर्ड है उसको पढ़ लेता था। Right. Right. And did you give any mock interviews as well? यस, आई गेव मॉक इंटरव्यू, अराउंड 4 to 5 मॉक इंटरव्यू आई गेव। Right. So like 4 to 5 दिया, तो what did you feel like कि like if you have to suggest to students कि लेना चाहिए पहली बात तो मॉक इंटरव्यू, एंड प्लस इज इट लाइक शुड यू टेक इंटरव्यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, बिकॉज इट हैपेंस everybody will be giving their the advices according to their experiences, right? But then it becomes confusing, like what to follow and what not to follow. So what would you suggest to the aspirants? देखिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए मॉक इंटरव्यू आपको। ऐसा भी नहीं कि आप 6-7 मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब एक बेसिक एवरेज तो 3-4 लेना ही चाहिए। बिकॉज आपको डिफरेंट ओपिनियंस भी मिलते हैं जो कि शायद सही हो आपके लिए। गलत है सही है वो तो आपको बाद में जज करके उसको कितने को अपने अंदर लेना है, कितने को नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन Hmm. आप उस फेज में जा चुके हो, तब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको जो ओपिनियंस आ रहे हैं उसको कितने आपको कंज्यूम करने, Hmm. कितने नहीं कंज्यूम करने। अगर वो ओपिनियन आपके बायोडाटा से रिलेटेड है और आपको लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई ये आ सकता है,
जैसे एक क्वेश्चन मैडम ने पूछा था, मैंने एडुटैप का एक क्वेश्चन इंटरव्यू लिया था, तो वहां पे मैडम ने पूछा था कि समथिंग रिलेटेड टू एसएमई, दैट एसएमई, हाउ एसएमईज आर बीन क्लासिफाइड अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। तो वो मेरे को काफी रिलेवेंट लगा, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली आया इंटरव्यू में कि ये एसएमई, हाउ एसएमईज आर बीन क्लासिफाइड, बिकॉज इंडिया में कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर वगैरह, वो तो सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे कैसे क्या चल रहा है, तो वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो वो काफी रिलेवेंट लगा। तो वो अगर आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट को दोगे, तब जाके आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि क्या पता ये अलग पूछ ले। अलग क्वेश्चंस आपको तो वो पता आप पे चलेगा। डिपेंड करना है, आपको फिल्टर करना है कि ये मेरे को लेना है कि ये नहीं लेना। राइट राइट, दैट्स वेरी ट्रू। एंड फॉर इंटरव्यू लाइक सो सारा जितना भी आपका बायोडेटा रिगार्डिंग था आपका उसी से आया था, राइट? सो ओके, जी जी। so that was about the interview. And even before, moving towards the end, I really want to ask, like, you gave 2 attempts and you could not clear pre in both the cases, but this time you just ended up in the final merit list. So what that one change you made in your preparation? One, of course, we discussed about not focusing much on strategy, rather working on it. But apart from that, was it something the thing that you changed, the approach that you changed in your life that made you, uh, like, again, to clear the examination? डिटर्मिनेशन इस बार बहुत हाई था कि क्लियर करना है, कैसे भी करना है। जब आपको पता रहता है कि यहाँ जाना है, चाहे आज जाए, एक साल बाद जाए, जाना है, तो फिर दो ऑलरेडी अटेम्प्ट खराब हो गए थे, और फिर प्रोविजन भी एंड होने पे था। जब आप पीएसबी में काम कर रहे हो, तो प्रोविजन आपके लिए मतलब बहुत गोल्डन चांस है कि आप वहां से उसी समय निकल सकते हो, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम रहता है एक्चुअली पढ़ने का। लेकिन जब आप प्रोविजन खत्म करते हो, तो आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका टाइम भी बढ़ता है, वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाते हैं। तो वही एक चीज थी, डिटर्मिनेशन जो थी कि इस बार जाना ही है आरबीआई में कैसे भी, तो उसने मेरे साथ काफी अच्छे हेल्पफुल हेल्पफुल रहा मेरे लिए उस जर्नी के साथ कॉप अप करने में। एंड जो भी डिफिकल्टीज आई, वो मैं बस ये सोच के ये ध्यान में रखा था कि यार यहाँ से निकलना है, बस कैसे भी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। अगर कुछ 3-4 महीनों के लिए 6 घंटे भी सोना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेते हैं बस। अभी यहाँ से निकल जाएंगे फिर तो जिंदगी और सोना ही है, तो फिर इसके लिए फिर इस तरह से सोचा था। Right, right. So is by determination, of course, that led to consistency in the studies and in the preparation, and that gave you the result, right? So thank you, sir. I am definitely sure जो आपका जो journey है, it must have inspired, and especially the working aspirants who would want that, that push in themselves कि नहीं वो भी कर सकते हैं. Sir, at the end, sir, would you like to say something to the aspirants who are preparing for this examination? आई विल एडवाइज ऑल द पीपल दैट दोज हु आर प्रिपेयरिंग कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी पे विश्वास रखना है, आपको अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस तरह से फॉलो करनी है, प्री में इस तरह से पढ़ूंगा, मेंस में ये पढ़ूंगा, मेरी ये रिसोर्सेज रहने वाली हैं, कभी उसे डिविएट मत कीजिए। आपको उसी पे ही रहना है, चाहे नो मैटर कोई टॉपर क्या बोल रहा है वो, क्योंकि कोई भी अगर कुछ बोलता है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा है। आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता है कि आपको कैसे वर्क करनी है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस तरह से करना है, तो आपको वैसे ही करना है, चाहे वो एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट आए या इजी आए, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे ही रहना है। Right, that's very important thing that you have said. And because again, if you just keep on looking at the strategy, then you would be just wasting your time in that only. You have to utilize that particular time because you have already limited sort of time, so you have to utilize it everything in your preparation, right? So thank you so much for sir joining with us and sharing your experience and helping aspirants who would think who were thinking of preparing for the examination, but now they must have been sure shot कि नहीं, हाँ, कर तो सकते हैं, if we have that self belief as you discussed. So thank you, sir, for joining, and we wish you all the very best for your future. थैंक यू वेरी मच।